Okay, so yesterday we have already done the physical properties of S block. Now we will start the chemical properties of S block. And I think one chemical property also we have done, that is the reaction with oxygen. So when alkaline earth metal react with oxygen, they form oxides. And these oxides are of MO type. MO means like if there is beryllium, it will be BeO. If there is magnesium, there will be MgO. If there is calcium, there will be CO, strontium SRO, and beryllium BaO. Because the valency of these elements is also 2, and the valency of oxygen is also 2. So that is why the formula will become MO. As I've told you that beryllium oxide and magnesium oxides have the inert behavior, means once they react with oxygen and form the beryllium oxide and magnesium oxide, then there will be a layer, or you can say a film of oxide on these compounds, and this film or this layer prevent them to react further. So that is why we can say that beryllium oxide and magnesium oxides are inert in nature, and beryllium oxide is amphoteric in nature, magnesium oxide is lightly basic in nature, and calcium oxide, strontium oxide, and barium oxide are basic in nature. When I'm saying that beryllium oxide is amphoteric and magnesium oxide is weak basic and others are basic, it means down the group the basic strength is increasing. इट्स इतने आप ही बहुत आसानी से ये बात क्लियर हो जाती है. तो डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ increases? Because the polarity down the group the basic strength of oxides. वैसे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस बिकॉज द polarity also decreases. And why the polarity decreases? Due to the increase in size. When we go down, the increase of the size of the ions increases. That is why the polarity decreases, and this is the reason why the basic character decreases. Now if we talk about their stability, so all these compounds are stable. The oxides of alkaline metals are very stable. Why they are stable? Because their enthalpies are quite high. So अगर हमें उन्हें तोड़ना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. It means what we can say that they are stable. Now, if we talk about their solubility, which is a very important factor, so solubility of any compound depends upon two energies. One is lattice energy and another is hydration energy. क्या होगा? Like suppose हमारे पास कोई भी compound है, जैसे हम मान लें calcium oxide है, and we are trying to dissolve into the water. So what will happen? First, the bond between the calcium and oxygen will break. For that we required lattice energy. पहले तो bond टूटेगा ना, and then this calcium और oxygen will get dissolved with water. तो water के साथ dissolve होने के लिए क्या करेगा? The water की जो polar nature है वो उसे अपनी तरफ attract करेगी, and that time the energy which is required is called as hydration energy. तो कोई भी चीज soluble कब होती है? When hydration energy is more than lattice energy, because जो net enthalpy है that should be negative. और नेट इंथैल्पी नेगेटिव कब होगी? जब हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर देन द लैटिस एनर्जी. तो किसी भी चीज में अगर हमें देखना है कि वेदर दैट इज सॉल्युबल और नॉट, so we need to check both these energies. If hydration energy is more than lattice energy, then this thing will be, or the compound will be soluble, and if it is less, then compound will be insoluble. मतलब total net enthalpy हमारी negative होनी चाहिए. So on the basis of that we can say that beryllium oxide and magnesium oxides are insoluble because they have large values of lattice energies. इनकी जो lattice energy होती है वो hydration energy से ज्यादा होती है. That is why they are insoluble in water, but the other compounds are soluble. बाकी के जो हमारे ऑक्साइड्स हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड्स है, these all are soluble in water. ठीक है. यहाँ एक एग्जाम्पल भी है कि सोडियम सल्फेट इज soluble in water but beryllium sulfate is insoluble in water. So why it is so? Because the lattice enthalpy of sodium sulfate is less than the hydration enthalpy. Okay, but on the other hand, if we see the in barium sulfate, so in barium sulfate, lattice enthalpy is very high as compared to the hydration enthalpy. That is why that is insoluble. तो कभी भी अगर आपको कोई रीजन देना है कि ये चीज क्यों insoluble है और ये क्यों soluble है, तो आप उनकी lattice energies और hydration energies को comparison कर सकते हैं. उसके बाद next आता है reaction with water. So whenever alkaline earth metals reacts with water, they form the hydroxides. ओके, बट उनकी जो टेंडेंसी है हाइड्रोक्साइड्स बनाने की, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इफ वी कंपेयर विद एल्केली मेटल्स, तो एल्केली मेटल्स के कंपैरेटिवली वो कम है.
So they combine with the water slowly as compared to the alkali metals, but they react, yes, they do react, and they form the hydroxides. ठीक है. Beryllium does not react with the water or steam, and even at red heat टेम्परेचर पर भी, क्योंकि बेरिलियम हमारा क्या है, इनर्ट, जो एनोमिलस बिहेवियर शो करेगा लाइक लिथियम, तो ये भी एक एनोमिलस बिहेवियर ही है उसका, कि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता. अगर हम वाटर को वार्म करें, इवन बहुत रेड हीट भी कर दें, तब भी वो रिएक्ट नहीं करता. बट द अदर एलिमेंट्स, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड. दो इतनी इजिली वो रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्टी से रिएक्ट करते हैं, मीन्स हमें टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, बट फाइनली दे रिएक्ट एंड फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स. एंड लाइक एल्कली मेटल्स, these hydroxides are also basic in nature and their basic strength increases down the group. जैसे जैसे नीचे जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. तो बेरिलियम ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक कौन होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर से तो रिएक्ट नहीं करता वो, लेकिन अगर किसी और तरीके से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो उसका हाइड्रोक्साइड कैसे आ गया? तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि वाटर से तो बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, अगर किसी और वजह से अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके, और बीच में हमारे पास कंपाउंड अलग अलग तरीकों से भी तो मैन्युफैक्चर होते हैं ना, तो उसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जितना नीचे जाओगे हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती रहेगी. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है. क्यों होती है इंक्रीज? मैम मैम क्योंकि बिकॉज साइज बॉन्ड बढ़ता लेंथ जाता साइज है. इंक्रीज, Yes, because बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इजीली यूज करेगा. very good, because size increases so as the bond length. जब bond length increase हो जाएगा तो bond dissociation energy कम हो जाएगी and OH आयन को रिलीज करने में ease होगा, और जितनी easily OH आयन रिलीज होगा उतनी ज्यादा basic strength होती है. That is why down the group the basic strength increases. Then third is reactivity towards hydrogen. So whenever alkaline earth metal reacts with the hydrogen, they form the hydrides. Okay, and these hydrides are of MH2 types. मत बिकॉज हाइड्रोजन की तो हमारी वैलेंसी कितनी होती है 1, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की कितनी है 2, तो MH2 टाइप्स बनेंगे. लाइक कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. इसका एक स्पेशल नाम भी होता है जब ये बनाता है. दिस इज नॉट ओनली कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिथ. तो कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिथ, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. स्टूडेंट्स एकदम सोचते हैं यार ये हाइड्रोलिथ क्या है, ये तो हमने कभी रिएक्शन किया ही नहीं. तो हाइड्रोलिस इज नथिंग, इट इज जस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. दीज हाइड्राइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर. मतलब नॉर्मली तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर इनके हाइड्राइड्स बना दिए जाएं पहले और फिर उनका रिएक्शन वाटर से कराया जाए तो ये बहुत इजीली वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं. लाइक अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो अभी फर्दर यहाँ पे बन गया है, इसको अगर आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा. So these hydrides are highly reactive towards water and form hydroxides and liberate hydrogen gas. ठीक है? Clear? Beryllium does not form hydride. Rest all the alkali metals form hydrides. Beryllium यहाँ पर भी hydrides में भी उसने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं नहीं रिएक्ट कर रहा हाइड्रोजन से, मेरे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हाइड्राइड्स नहीं बना पाता. देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड. अच्छा, एसिड्स के साथ व्हेन दीज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट दे फॉर्म द सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो ये जो इनकी रिएक्शन है एसिड के साथ जिसमें ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ये भी इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को प्रूव करता है. व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि किसी भी एसिड के साथ एक बेस ही होता है जो रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. एसिड के साथ एसिड तो रिएक्ट करेगा नहीं, है ना. तो ऑब्वियसली ये बेस है हमारा, और अभी हम कह ही रहे हैं कि ये बेसिक होते हैं नेचर में, तो इससे भी इनकी बेसिक नेचर प्रूव हो जाती है. तो किसी भी मेटल से अगर ये रिएक्ट करते हैं तो ये उसका सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं. तो व्हाट वी कैन से दैट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बेरिलियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद द एसिड्स, बट अगर कंसंट्रेटेड हो तो इजिली रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एक बहुत ही थिन लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की बेरिलियम के चारों तरफ, जो उसे फर्दर प्रोटेक्ट करता है फर्दर उसके एसिड के अटैक से. बेरिलियम इज एम्फोटेरिक
एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्या मतलब हुआ इसका कि बेरिलियम हमने बोला था एम्फोटेरिक है नेचर में, तो एसिड के साथ ही नहीं, ये सिर्फ बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेगा और उनके साथ रिएक्ट करके भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। Magnesium, calcium, strontium, and barium does not react with sodium hydroxide because they are purely basic. They show their basic properties increase on descending the group. जैसे जैसे आप ग्रुप में आएंगे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो बेसिस से रिएक्ट फर्दर नहीं करेंगे। फोर्थ आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। सो वेन एवर एल्केलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हेलोजेंस एट हाई टेम्परेचर they form halides, and these halides are of which type? MX2 type, where M is alkaline earth metal and X can be any halogen. It can be fluorine, chlorine, bromine, and iodine. These metal halides can also be obtained by the action of halogen acids. मतलब क्या है कि अगर आपने हेलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करा दिया बेरिलियम का, जैसे आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हमारा क्लोरीन का क्या हो गया, सॉल्ट हो गया ना, एक तरीके से क्लोरीन का एसिड हो गया। तो तब भी वही बनेगा, तब भी हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, बट साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हमें अगर एल्केलाइन मेटल्स के हेलाइड्स बनाने हैं, तो एक तो मेथड ये है कि एल्केलाइन मेथड को डायरेक्टली आप उस हेलोजन के साथ रिएक्ट करा दो, और दूसरा मेथड ये है कि एल्केलाइन मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन हम किससे करा दें, हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड्स मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें हेलोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी ऐड हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड फेस में अलग होता है और गैशियस फेस में ये अलग स्ट्रक्चर शो करता है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अक्सर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका आता है, इसको ध्यान से समझो क्या है इसका स्ट्रक्चर और कैसे बनता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड हमारा कैसे बनेगा, पहली बात तो सॉरी बेरिलियम क्लोराइड, पहले हम बेरिलियम ऑक्साइड बनाते हैं। सो मींस इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेरिलियम ऑक्साइड विद क्लोरीन वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन के साथ कार्बन की प्रेजेंस में, और बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 870 टू 1070 केल्विन तक। तो उसमें हमारा बनता है बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। So beryllium chloride can also be prepared by direct high temperature chlorination of metallic beryllium. डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर इसकी आप देखो, सबसे पहले देखो सॉलिड फेस की स्ट्रक्चर। सॉलिड फेस में इट हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रेट चेन एंड वन बेरिलियम इज बॉन्डेड टू 4 क्लोरीन। ये बेरिलियम है हमारा, इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़े होंगे। वैसे तो फॉर्मूला क्या है बेरिलियम का, BeCl2, अपने इसके पास 2 क्लोरीन ही है, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाला जो उसका बेरिलियम क्लोराइड है 2 क्लोरीन उससे ले लेगा। अपने क्लोरीन के साथ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जो दूसरे क्लोरीन है इसके, उनके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो एक बेरिलियम 4 क्लोरीन से अटैच्ड होगा, जिसमें से 2 के साथ वो कैसा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और 2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस वाला ये जो बेरिलियम है इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इनके साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसके साथ। अब ये बेरिलियम आ गया, इस बेरिलियम ने इन दोनों के साथ तो बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना चुके हैं, तो इसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ बना लिया उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बन गया कोवेलेंट, तो ये वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट, एक कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट। इस तरीके से बेरिलियम क्लोराइड की लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, एंड बिकॉज एक बेरिलियम क्लोराइड बहुत सारी लंबी चेन बना रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि मोनोमर से बनी हुई चेन, जब बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिगर चेन बना लें, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। सो दैट इज व्हाई वी से कि सॉलिड फेज में जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज पॉलीमेरिक स्ट्रेट चेन। लेकिन यही अगर हम गैसियस फेज की बात करें, तो गैशियस फेज में इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गैशियस फेज में इट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये बेरिलियम हो गया हमारा, ठीक, ये क्लोरीन इसका, ये क्लोरीन इसका। इसके एक बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन है, BeCl2, एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक जो और इसका क्लोरीन है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो एक बेरिलियम हमारा 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होगा इसमें, ठीक है, जिसमें 2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होगा, और सिर्फ ये मोनोमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बस 2 बेरिलियम एक साथ जुड़े हुए होंगे, दैट्स इट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉट BeCl2, द फॉर्मूला विल बी Be2
Cl क्या हो जाएगा, Be2Cl, बताओ 4 हो जाएगा ना, 4 या 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से मोनोमर की फॉर्म में, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोमर तो ये हो गया इसका, ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गैसियस फेस में। लेकिन अगर ये हमारा सॉलिड फेस में हो तो ये पॉलीमर चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे जुड़े हुए होंगे और इसमें सिर्फ 2 जुड़े हुए होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायमर। डायमर मतलब सिर्फ 2 ही कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन वेपर फेस बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डायमर which associate into the linear monomer at 1200 Kelvin. But on the other hand, in solid state, it exists as polymer. Clear? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। तो ये हो गया हमारा हेलोजन तक के साथ उसके रिएक्शंस। अब आता है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एंड वन एलिमेंट ऑफ एसिड। ऑक्सो एसिड किसको बोला जाता है कि जिसमें एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जरूर, और साथ ही साथ कोई भी एक एसिड का कंपाउंड प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ऑक्सिलेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? दीज ऑल आर ऑक्सो एसिड्स। इन सबको ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है कंबाइंडली। तो अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो फॉर्म द सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जिसमें से फर्स्ट है कार्बोनेट्स। द कार्बोनेट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कैन बी प्रिपेयर्ड हाउ? by passing the carbon dioxide in limited supply through the solutions of their hydroxide। मतलब ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज हो गया। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबका रिएक्शन हो जाएगा। द alkaline earth metal carbonates being soluble in water can be precipitated by the addition of a sodium or ammonium carbonate solution to a solution of soluble salt of these metals। क्या होते हैं ये सारे के सारे हमारे, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो हमें कभी भी अगर इन्हें अलग करना हो तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनसॉल्युबल है तो इनका प्रेसिपिटेट बना देते हैं। प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ये वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर फिल्टर करके इनको इजिली अलग किया जा सकता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी सबसे कम स्टेबल होगा बेरिलियम कार्बोनेट और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो ये जो होते हैं ये बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो उस वाटर में ये इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इसलिए सॉलिबिलिटी भी कम होती रहती है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी हीट देने पर कितनी आसानी से ये टूटेगा। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा आसानी से टूट जाएगा और ये जो है ये सबसे डिफिकल्टी से टूटेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सबसे ज्यादा कब से कम स्टेबल है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें एक और हम कर लेते हैं, कार्बोनेट्स हो गया एक तो ऑक्सो एसिड्स, दूसरे हो गए हमारे पास सल्फोनेट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। सल्फेट, सॉरी सल्फोनेट्स बोल रही हूँ मैं, सल्फेट्स। तो सल्फेट्स कैसे बनेंगे? किसी भी अल्केलाइन अर्थ मेटल को अगर हम किसी एसिड से रिएक्ट करा दें, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो सल्फेट आएगा हमारे पास। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन। When calcium oxide reacts with sulfuric acid, then also it forms calcium sulfate, but in that case it produces water। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली हमारा एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो अब कोई भी सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और अगर इनके ऑक्साइड्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं बनेगा तो तब भी सल्फेट, बट इन दैट केस हमें साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट्स क्रिस्टलाइजेस इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये इनके ये जो सल्फेट्स हैं सारे के सारे ये हाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इजिली ऐड हो जाते हैं इनके साथ। देख रहे हो यहाँ पर BeSO4.4H2O, MgSO4.7H2O, CaSO4.2H2O। तो ये क्या करते हैं? वाटर को अपने साथ ऐड कर लेते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर को हाइड्रेट करने की, वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो द सल्फेट्स ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम क्रिस्टलाइजेस विदाउट वाटर। इन दोनों के अंदर तो वाटर को हाइड्रेट करने की कैपेबिलिटीज कम होती हैं, बट इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सल्फेट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस सॉल्युबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ एल्केली मेटल्स।
एल्कली मेटल्स के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इनके जो सल्फेट्स हैं वो कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं. बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर वेरी सॉल्युबल, बट जो बाकी के हैं वो थोड़े कम सॉल्युबल होते हैं. क्यों? दिस इज ड्यू टू द हाई लेटिस एंथैल्पी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स सल्फेट्स. एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट है उनकी लेटिस एंथैल्पी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू देयर हाइड्रेशन एंथैल्पीज. सो दैट इज व्हाई दे आर लेस सॉल्युबल. जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट का. सोडियम सल्फेट हमारा एल्केली मेटल का सल्फेट है और बेरिलियम सल्फेट हमारा किसका है? एल्केलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है, बेरियम सल्फेट. तो दोनों की जो सॉल्युबिलिटीज है उनमें बहुत फर्क है. सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है. तो यही बिकॉज उनकी जो लेटिस एंथैल्पीज है एल्केली मेटल्स की वो कम होती हैं और हाइड्रेशन एंथैल्पीज ज्यादा होती हैं. बट ऑन द अदर हैंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में दे हैव हाई हाइड्रेशन, हाई लेटिस एंथैल्पीज एंड लेस हाइड्रेशन एंथैल्पीज. दैट इज व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑन मूविंग डाउन the hydration enthalpies decreases. Why? Because there is increase in size of metal ion and that is why their solubility is decreases. ठीक है? The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble. क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसके सामने लेटिस एंथैल्पी भी उनकी हाई है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि लेटिस एंथैल्पी उसके सामने कम पड़ जाती है, इसलिए वो दोनों सॉल्युबल है. बाकी के सारे जो सल्फेट्स हैं वो इनसॉल्युबल है. ठीक है? तो ये हमारा एक थोड़ा-सा एनोमलस बिहेवियर भी आ जाता है. नाउ एज़ आई हैव टोल्ड यू, लाइक लिथियम, बेरिलियम आल्सो शो द एनोमलस बिहेवियर. रीज़न मैंने बता दिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ रिविजन that beryllium also show the anomalous behavior as compared to the magnesium and rest of the members of its group. Why? Because it has a small size, high ionization enthalpy and high electronegativity and absence of vacant d orbitals. ड्यू टू दिस बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग होता है. क्या अलग है वो बिहेवियर? लिथियम की जैसा ही है अप्रोक्सीमेटली, कि बेरिलियम इज हार्डर देन द अदर एलिमेंट्स. उसकी वजह से इट पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. अभी अभी मैंने आपको बताया कि कितना भी हाई टेम्परेचर कर दिया जाए फिर भी ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता. बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म हाइड्राइड. डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा. अगर आपको रिएक्ट कराना है तो आपको दूसरे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है? बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, जबकि बाकी के सारे जो हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. सेम एज लिथियम की तरह ही इसका भी सारी कहानी है. ठीक है? बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4. अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं है. जब आप लोग 12th में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से, तो वहां आप देखोगे. तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि बेरिलियम जो है वो 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ कितने वैलेंस शेल होते हैं? 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पास, 3p के और एक s का, क्योंकि d तो है ही नहीं उसके पास. जबकि जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ग्रुप के, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक चला जाता है, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है. बेरिलियम के पास नहीं है. तो इसलिए बेरिलियम कार्बाइड विद वाटर गिव्स मीथेन. अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है आपको. दैट्स इट. उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम किसके साथ शो करेगा? एल्यूमिनियम के साथ. जैसे एल्यूमीनियम. लिथियम ने शो किया था मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम शो करेगा एल्यूमिनियम के साथ. रीजंस वही सेम. बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, एल्यूमिनियम की भी होती है 1.5. बिल्कुल सेम है. चार्जेस की बात अगर हम करें या रेडियस भी उनके जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं. अगर हम चार्ज और रेडियस का रेशो निकालें तो बेरिलियम का आता है 0.064 और एल्यूमिनियम का आता है 0.060. तो इसलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है? दोनों ही जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक बार रिएक्ट करने के बाद उनके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म चल जाती है, फिल्म चढ़ जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से फर्दर वो रेसिस्ट हो जाते हैं रिएक्ट करने के लिए. बोथ फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बाय द एक्शन ऑफ एल्किलीज. ठीक है? बोथ द मेटल्स आर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. उसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड हैव अ ब्रिज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन वेपर फेज. दोनों, जैसे हमने बेरिलियम का स्ट्रक्चर देखा ना, ऐसे जब आप एल्यूमिनियम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो भी पॉलीमर्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जैसे बेरिलियम एग्जिस्ट करता है. तो दोनों जो हैं वो
ब्रिज फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। हेलाइड्स जो हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, उन दोनों की भी सॉल्युबिलिटीज सेम होती हैं। So these are some of the similarities between beryllium and magnesium. So all these questions, the anomalous behavior of lithium, anomalous behavior of beryllium, reason of their anomalous behavior, the differences of beryllium and lithium from their the elements of the other elements of their group, and then similarities of lithium and magnesium and beryllium and aluminium. These all are very important questions of this chapter. Uses, as I've told you, that one video I have already shared related to videos